Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the first video of Introduction to Partnership, the very first lesson of Elements of Accountancy subject, Standard 12th Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। So friends, in today's video, first of all we will understand the weightage of this lesson, what kind of questions are asked in the board exams from this chapter, and then after we will understand the most important portion of theory of this lesson, because all the chapters of your Elements of Accountancy part 1 are related to partnership. You can see the index, you will find Introduction to Partnership, then Annual Accounts of Partnership, then Reconstruction of Partnership, Goodwill, Admission of Partner, Retirement of Partner and Dissolution of Partner. So all the lessons are related to partners or partnership. So the theory of this lesson is most important, because if you have the thorough knowledge of the theory of partnership, then all the chapters will become easy for you to understand. So don't miss the theory. Please pay full attention and learn all the rules and important points. So without wasting time, let's start. Elements of Accountancy, chapter number 1, Introduction to Partnership. Friends, you all are familiar with the word partnership because in 11th standard in the OCM subject you have studied the sole proprietorship and partnership. So here you have to learn the accounting treatment of partnership. From the viewpoint of board exam, the total weightage of this chapter is 4 marks. How the marks are allocated, that I show you. You can see one question is asked in section A for 1 mark. One question is asked in section C for 3 marks. So like this, the total weightage of this chapter is 4 marks. So the first topic of this lesson is meaning of partnership. According to Partnership Act 1932 in section 4, फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखनी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। इन सेक्शन ए एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट लागू पड़ता है, तो आपको याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप की डिफाइन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में दी हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है इन द सेक्शन 4। तो चलिए हम पार्टनरशिप की डिफाइन भी देख लेते हैं। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड to share the profit of the business which is carried on by them all or any of them acting for all. So friends, partnership एक relationship है, एक संबंध है between persons, व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है कि जिसमें वो अग्री होते हैं, यानी कि वो एक करार करते हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं to share the profit of the business. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट का जिक्र किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लॉस होगा तो वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, इसीलिए डिफाइन में सिर्फ प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया हुआ है। सो अगेन, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज़ कैरीड ऑन बाय देम ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी मिलकर बिजनेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक जो उन सबके बिहाफ बिजनेस को मैनेज कर सकता है। तो एक बार फिर से शॉर्ट में, पार्टनरशिप ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा चलाए गए या
सभी के बिहाफ किसी एक के द्वारा चलाए गए बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हों। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, एग्जाम व्यू पॉइंट से भले ही इस चैप्टर का वेटेज कम हो, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके रूल्स आपको पूरी पार्ट 1 में यूजफुल होंगे। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट ये एक कानूनी शब्द है। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में हम करार कहते हैं। तो पार्टनरशिप इज एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अमल में आती है, या पार्टनरशिप का क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर पार्टनर्स को एक दूसरे की बातों के लिए एग्री होना पड़ता है। सपोज़ मैं किसी मेरे फ्रेंड को कहता हूँ कि चलो हम दोनों मिलकर 5-5 लाख रुपए लगाकर एक पार्टनरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उसे कहा, अगर वो मेरी शर्तों को मान लेता है और मैं उनकी शर्तों को मान लेता हूँ, तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। तो ये एग्रीमेंट फ्रेंड्स 2 टाइप का होता है, एक ओरल और एक रिटन। ओरल एग्रीमेंट मीन्स मैं कुछ ओरली बोलूं और सामने वाला उसे मान जाए, तो ये ओरल एग्रीमेंट है। लेकिन उन्हीं बातों को अगर मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखकर सिग्नेचर कर देता हूं, तो फिर वो एक रिटन एग्रीमेंट बन जाता है। तो इन दोनों में रिटन एग्रीमेंट वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है, बिकॉज विद द रिटन एग्रीमेंट द डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर कैन बी अवॉइडेड। डिस्प्यूट्स मतलब कुछ वाद विवाद, किसी टॉपिक पर अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कहा सुनी हो जाए, तो अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो कोई अपनी बात से घूम नहीं सकता, इसीलिए उस डिस्प्यूट को, उस झगड़े को हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते, उसको हम कोई एनजीओ कहेंगे या कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहेंगे। लेकिन अगर वो लोग मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो ही हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप इज एप्लीकेबल टू द लीगल बिजनेस ओनली। For example, friends, you all know that wine or alcohol is prohibited in Gujarat, but it is permitted in Rajasthan, Haryana, UP, Bihar, Punjab, etc. तो यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर वाइन का या अल्कोहल का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर ये पार्टनरशिप लीगल है। बट गुजरात में शराब पर प्रतिबंध होने की वजह से ये इल्लीगल बिजनेस है, तो उसको अगर कुछ लोग मिलकर चलाते हैं तो वो इल्लीगल बिजनेस माना जाएगा और उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। एजेंट ऑफ ईच पार्टनर। फ्रेंड्स, एक और विशेषता, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं वो सभी एक दूसरे के एजेंट कहे जाते हैं। ये भी एमसीक्यू में पहले आ चुका है कि अ पार्टनर इज डैश फॉर अदर पार्टनर। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको एजेंट सिलेक्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मिनिमम तो हम सभी जानते हैं कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्योंकि अकेला पार्टनर वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो मिनिमम जो नंबर्स ऑफ पार्टनर है वो तो 2 हैं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं उसका यहाँ पर स्टडी करना है। तो एज पर द कंपनी एक्ट 2013, उसके सेक्शन 464 में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स को वैलिड माना गया है, यानी उसमें हम मैक्सिमम 100 पार्टनर्स रख सकते हैं। बट एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, यानी 2014 के जो अमेंडमेंट या सुधार के अंदर कंपनी के मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही रखे जा सकते हैं। एंड द 6th कैरेक्टरिस्टिक इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। फ्रेंड्स, आपने 11th में ये सीखा होगा कि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
we should know the meaning of unlimited liability. At the time of dissolution of the partnership firm, यानी हर एक बिजनेस में एक स्टेज ऐसा आता है जब हम कांस्टेंट लॉस कर रहे होते हैं और हमें बिजनेस वाइंड अप करना पड़ता है या बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहें. तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस बंद करते टाइम, इफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेब्ट ऑफ द बिजनेस. फ्रेंड्स, बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं और कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, कुछ डेब्ट होता है यानी कुछ कर्जा होता है. तो जब हम बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो हमें हमारे हर एक कर्ज को चुकाना होता है. तो उस कर्जे को चुकाने के लिए हम हमारी एसेट्स को सेल करते हैं और एसेट को सेल करके जो भी पैसा हमें मिलता है उस पैसे से हम कर्जा चुकाते हैं. लेकिन अगर हमारा कर्जा बहुत ज़्यादा हो और हमारी सारी एसेट्स बेचकर भी हम उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में द पार्टनर्स शुड सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ टू पे द डेब्ट. तो इस केस में पार्टनर्स को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेचकर भी उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा. ऐसी लायबिलिटी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड. फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी से रिलेटेड जो रूल्स बनेंगे वो हमें सम सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है. सो फ्रेंड्स, द रिटन एग्रीमेंट और रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. द नेक्स्ट टॉपिक, कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का समावेश होता है. सो द फॉलोइंग कंटेंट is included in partnership deed. We will see one by one. First, details of partners. पार्टनर्स की डिटेल्स, पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस, उनका आईडी प्रूफ, ये सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए. सेकंड, डिटेल्स ऑफ फर्म. फर्म का नाम, फर्म की हेड ऑफिस कहाँ है, फर्म की कितनी ब्रांचेस हैं, ये सारी डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में होती हैं. देन टाइप्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस का टाइप कैसा है, फाइनेंशियल बिजनेस है या जनरल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट का बिजनेस है या सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस है, तो किस टाइप का बिजनेस है वो भी हमें मेंशन करना होता है. देन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कौन सी तारीख से अमल में आई है वो भी हमें मेंशन करना होता है. देन कैपिटल, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो भी हमें मेंशन करना होता है. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं उस कैपिटल पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितने रेट से मिलेगा वो भी हमें मेंशन करना होता है. देन ड्राइंग्स. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब बिजनेस ऑनर या कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. तो क्या पार्टनर्स को पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करने की परमिशन दी जाएगी या नहीं, इस बात को भी आपको मेंशन करना है. अगर आप पार्टनर को ड्राइंग्स की परमिशन देते हैं तो क्या उससे ड्राइंग का इंटरेस्ट आप लेंगे, ये भी आपको मेंशन करना है, और अगर लेंगे तो कितना % लेंगे वो भी आपको बताना रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसे किस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है वो भी आपको वहाँ बताना रहेगा. सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिफाइन में ही सीखा था कि पार्टनरशिप को मैनेज करने का काम सभी पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर कर सकता है, जिसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं. तो अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और वो बिज़नेस का मैनेजमेंट हाथ में लेता है तो उसके बदले में वो सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन लेना चाहेगा. तो उस पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन देना है या नहीं देना है वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रहता है, और अगर देना है तो कितनी अमाउंट देनी है वो भी आपको मेंशन करनी रहती है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो. देन गुडविल. गुडविल का मतलब होता है प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फेम, बिजनेस कितना फेमस है वो. तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा. यहाँ पर अकाउंट में हमारा पूरा एक चैप्टर है गुडविल का, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में जानकारी हम तब लेंगे जब हम गुडविल का चैप्टर पढ़ेंगे. देन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म.
फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फर्म को किसी रीज़न से लॉस हो जाता है, तो लॉस होने पर भी हमें हमारे वर्कर्स को तो सैलरी देनी होती है। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उन खर्चों को करने के लिए हमारे पास फंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें लॉस हो रहा होता है तब हमारे पास फंड नहीं होता, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम बैंक के पास से लोन ले लें, तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो हमें हाई रेट का इंटरेस्ट पे करना होता है और वो इंटरेस्ट बैंक में जाता है, यानी थर्ड पार्टी के पास जाता है। और अगर ये पॉसिबल हो कि हमारे पार्टनर्स में ही कोई पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करता हो और उसके पास पैसे पड़े हों, तो वो फर्म को लोन दे सकता है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को किसी लिमिटेड टाइम के लिए लोन देता है, तो उसकी उस लोन पर कितना % इंटरेस्ट उसे मिलेगा वो भी आपको अंदर मेंशन करना रहता है। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट, अगर आप रनिंग बिजनेस में किसी पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हो या कोई नया पार्टनर आप एडमिट करना चाहते हो, तो उसकी क्या शर्तें रहेंगी। और अगर कोई पार्टनर रनिंग बिजनेस में से निकलना चाहता हो, यानी रिटायरमेंट लेना चाहता हो, या उसकी एज हो गई हो या डेथ हो गई हो, तो उस वक्त क्या क्या शर्तें होंगी वो भी आपको मेंशन करना है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अभी मैंने आपको ये समझाया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस बंद करना, यानी अगर किसी रीज़न से हमें बिजनेस बंद भी करना पड़ जाए तो उस वक्त क्या क्या शर्तें रहेंगी ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रहता है। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों का समावेश होता है वो तो हमने सीखा, लेकिन क्या हो जब हम पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं, यानी रिटर्न एग्रीमेंट हम तैयार ही ना करें, तो उस वक्त कौन कौन से प्रश्न खड़े हो सकते हैं और उन प्रश्नों का निराकरण हम कैसे ला सकते हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पर सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको सम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन अमंग द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, अगर पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है तो उस केस में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जब आप सम सॉल्व कर रहे हो उस वक्त अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो ना दिया गया हो तो आपको उसे हिडन एडजस्टमेंट समझकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर्स बाय द फर्म। फ्रेंड्स, पूरा साल खत्म हो जाने पर अगर कोई पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड करता है तो उसको वो इंटरेस्ट पे नहीं किया जा सकता। अगर वो कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट भी उसे ये कहेगी कि आप अपना रिटर्न एग्रीमेंट दिखाइए, और अगर उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोर्ट का भी यही फैसला होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स बाय द फर्म। यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो लीगली तो आप ड्राइंग्स कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बाकी के पार्टनर्स की मंजूरी से अगर आपने ड्राइंग्स किया है, यानी कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, तो जब आप पैसे वापस करते हैं, रिफंड करते हैं फर्म को, उस वक्त अगर कोई दूसरा पार्टनर आपसे ये कहे कि आप इस ड्राइंग का इंटरेस्ट भी पे करिए, तो आप उस ड्राइंग का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। कोर्ट भी आपको ऐसा करने से मना करेगी। मीन्स ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा सकता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन एंड बोनस कैन नॉट बी पेड टू द एक्टिव पार्टनर। भले ही पूरे साल किसी पार्टनर ने काफ़ी मेहनत की हो बिजनेस को मैनेज करने में, रात रात भर वो जगा हो, लेकिन फिर भी साल खत्म होने पर अगर वो ये कहता है कि नहीं भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे सैलरी का कुछ भाग तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया है तो उसे सैलरी, कमीशन, बोनस या रेम्यूनरेशन में से कुछ भी नहीं मिल सकता। फ्रेंड्स, आपने देखा अभी तक जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब में हम ना ही कहते जा रहे हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक केस है कि जो अभी हमने समझा था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया है तो भी वो कम से कम 6% इंटरेस्ट ले सकता है। मीन्स पार्टनर कैन गेट एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम टू द फर्म। याद रखिएगा, इसमें कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको एमसीक्यू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछा जाता है तो भी आप 6% टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, और वो भी लोन कौन सी है इस पर भी फोकस करिएगा।
यहाँ पर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, उस इंटरेस्ट की बात हो रही है। So friends, today we stop here. I hope you all have understood all the points that we have discussed. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें, ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए और बेहतर और इजी वे में वीडियोस लेकर आ सकें। फ्रेंड्स, in the next video we will solve the sums related to this lesson. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.